Hello children, so we'll be moving further with the nutrition class, and I would like to just tell you that I would like to remind you actually that in the last class we were dealing with the nutrition or the therapeutic nutrition basically. So that topic is over now, so now this is the last unit which I have to take for nutrition, okay? And this unit particularly contains a few programs which were started by government, which were based on the programs which I will be telling you one by one. These programs basically were started by keeping in mind the necessity of these programs to be there, because like I'll be telling you a few programs. Those programs will be, the very first is National Program for Control of Blindness, or you can say Vitamin A Prophylaxis Program. First is this program. Second is Iodine Deficiency Disorder programs. Okay. Next is your Prophylaxis Against Nutritional Anemia. See, one by one you can see that all these problems you already have studied in your first chapter, I guess. Yeah, that's the first chapter where you have studied about a few problems which are very common, or which were very common in the country in the earlier days. The first, as I told you, National Program for Control of Blindness. IU people already know it very well, that because of vitamin A deficiency, the blindness was a prevalent problem in the earlier era. Okay, so the first was this program. The next is Iodine Deficiency Disorder. Iodine deficiency was also one of the prevalent problems in India, which was existing earlier. Next is Prophylaxis Against Nutritional Anemia. Anemia was also one of the commonest problem which was existing and which exists today as well. Okay, not that much, but yeah, it does. The next is your midday school meal program. This program basically was started by keeping in view the nutrition of the children. Okay. The next is midday meal scheme. This is the scheme, earlier was the program. Next is your Integrated Child Development Scheme, ICDS. Okay. So these are the programs which we will be discussing one by one in this particular chapter. Okay. So I'll be starting with the National Program for Control of Blindness. Okay, the National Program for Control of Blindness. That's the name of the program. Okay, or it can also be said as Vitamin A Prophylaxis Program. क्योंकि blindness का ये program है ना, तो vitamin A की deficiency से ही mainly this blindness was occurring. So vitamin A के treatment का involvement है इस program में. Okay. So first of all, this National Program for Control of Blindness, it was launched in the year 1970s. Okay, this particular program was launched in year 1970 as 100% centrally sponsored program. This program was sponsored at that time by the central government. Central government was sponsoring this program and it was started in 1970. ये प्रोग्राम हमारा जो है वो लॉन्च किया था it was launched by the Ministry of Health and Family Welfare. Okay, and it was basically based on the development of the technologies, and it was working on the basis of the technology which got developed at the National Institute of Nutrition of Hyderabad. ठीक है, mainly it was started on the basis of that. जो टेक्नोलॉजी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN, because of the technological development which happened in NIN Hyderabad, on the basis of those developments itself, this program got launched by the Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so now I would like to tell you that जिस टाइम पे ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे it was very prevalent that vitamin A deficiency, it was seen to be very prevalent, and it was considered to be a major health problem of which the people were suffering, mainly the Indians. Those were suffering from the vitamin A deficiency, and this deficiency further leads to the impairment of the vision, and along with the impairment of the vision, it also was causing
partial or complete blindness. Okay, so this was the most prevalent problem. It was a nationwide problem. So for this problem a nationwide survey was conducted. एक nationwide, एक मतलब पूरे nation में, एक इंडिया में हमारे एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया. This survey was conducted in the year 1986 to 1989. 1986 से लेकर के 1989 तक एक सर्वे हमारा कंडक्ट करवाया गया. इस सर्वे में इंक्लूड किया विटामिन ए डेफिशिएंसी के प्रिवेलेंस को अमंग द चिल्ड्रन जिनकी उम्र होगी 6 months to 6 years. मेनली इनके ऊपर ये सर्वे कंडक्ट किया. ठीक है. सी दिस द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मेनली वाज फाउंड इन चिल्ड्रन. एल्डरली में भी था बट चिल्ड्रन में दिस सर्वे गॉट कंडक्टेड. विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लिए ये सर्वे कंडक्ट कराया गया ईयर 1986 से लेकर के ईयर 1989 तक के लिए. देन इसमें ये देखा गया कि जो बच्चे हैं 6 months से लेकर के 6 years तक के, उनमें कितना ज्यादा ब्लाइंडनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है. हो तो रहा था बट टू चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज कि इनमें कितना ज्यादा प्रिवेलेंट है ये होना. प्रिवेलेंट का मतलब होता है कितना ज्यादा प्रेजेंट है ये डिजीज कंडीशन, कितना प्रिवेलेंट है ये डिजीज कंडीशन. ओके, टू चेक द प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज in the age group from 6 months to 6 years, that's the children. For checking it, this survey was conducted. Okay, then जो प्रिवेलेंस रेट हमारा फिर उसके बाद जो निकल करके आया, इट वॉज ऑफ 6% इन चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज. ओके, जो 6 साल से कम तक के बच्चे हैं उनमें द प्रिवेलेंस वॉज फाउंड टू बी 6%. ओके, आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ. हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये जो सर्वे था ये क्या कर रहा था कि चेक कर रहा था कि बच्चों में कितना प्रिवेलेंस रेट है विटामिन ए डेफिशिएंसी का. सो आफ्टर द सर्वे वाज कंडक्टेड, आफ्टर इट वाज ओवर एंड द रिजल्ट्स वर नोटिस्ड, सो इट वाज फाउंड दैट द चिल्ड्रन बिलो 6 years of age were having 6% of the prevalence of this particular problem. ठीक है. विटामिन ए डेफिशिएंसी में क्या क्या चीजें और हमारी साथ साथ में पता चली कि क्या क्या चीजें हमारी आ रही हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से. इट वाज कॉजिंग नाइट ब्लाइंडनेस, इट वाज कॉजिंग कंजंक्टिवल जेरोसिस, बाइटॉट स्पॉट, कॉर्नियल जेरोसिस, केराटोमलेशिया. ऑल दीज थिंग्स वर फाउंड कि सिर्फ ब्लाइंडनेस तो हो ही रहा है, ब्लाइंडनेस के अलावा क्या क्या चीजें इस विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हैं लोगों में. दैट वाज योर नाइट ब्लाइंडनेस, जब रात में अंधेरा नहीं दिखता है. ओके, जब रात में नहीं दिखता है द विजन गेट्स इम्पेयर्ड एट नाइट, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस. बाइटॉट स्पॉट में बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्या होता है. कंजक्टिवल जेरोसिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स. देन देयर वाज दिस कॉर्नियल जेरोसिस, देन केराटोमलेशिया. दीज वर अ फ्यू थिंग्स विच वर known to be there because of the vitamin A deficiency. ठीक है. फिर अब इस चीज के लिए after the survey was conducted there were some strategies made up. Okay, some strategies were then made up in order to overcome these problems. इन problems को overcome करने के लिए फिर कुछ strategies बनाई गई. Okay, strategy हमारा क्या था? Those were mainly the preventive and the control strategies. Prevention and control strategies were made. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज में हमारे 2 मेन कंपोनेंट्स थे. फर्स्ट इज कि लोगों के डाइट में इम्प्रूवमेंट करना है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. फर्स्ट कंपोनेंट वाज द इम्प्रूवमेंट इन द डाइट ऑफ द पीपल. मतलब डाइट में विटामिन ए देंगे हम, सो दैट जो भी हमारा अंडरलाइंग कॉज है जब वो सही हो जाएगा तो डिजीज भी सही हो जाएगी. सो पहला हमारा था डाइट के लिए. दूसरा हमारा था विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन अलग से, सिर्फ विटामिन ए का. डाइट में करने का क्या मतलब है कि डाइट में हमारा पीईएम भी आ गया, प्रोटीन भी हम ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि पीईएम की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकता है. सो जो भी हमारा अंडरलाइन कॉज है टू कॉज ब्लाइंडनेस और टू कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट, डाइट मॉडिफिकेशन में उस पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए डाइट दे रहे थे. बट इन द सेकेंड स्ट्रैटेजी, second component was the vitamin A prophylaxis. मतलब vitamin A administer कर रहे थे orally. ठीक है. One by one I will be telling you in detail about both of these components. So the first component was improvement of people's diet. Okay.
सो यहाँ पे डाइट को इम्प्रूव कर रहे थे सो दैट वी विल बी इंश्योरिंग दैट अ रेगुलर एंड एडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड इज बीइंग देयर. Regular and required amount of vitamin A is present in the diet of the people and they are consuming the required amount of vitamin A. जितना vitamin A लेना चाहिए वो उतना vitamin A को ले रहे हैं. And also the improvement of the diet also focused on the other problems which were contributing to cause this blindness or visual impairment. तो उन कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉजेज पे भी इन लोगों ने ध्यान दिया, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो गया, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी, डायरिया की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकता है, देन मीजल्स की वजह से भी हो सकता है. सो इफ देर आर एनी अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट, सो द डाइटरी मॉडिफिकेशन ऑल्सो फोकस्ड इन डीलिंग विद द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. गॉट इट? सो दिस वॉज their main focus while they had this thing in their mind to improve the dietary modifications or to improve the dietary habits of the people. So these were a few things which were there in their mind. Then ये हमारे जो measures थे, those measures were known to be the long term measures, कि बहुत लंबे समय तक वो करने के लिए इन्होंने सोचा. ठीक है, लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जिसमें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन वाज गिवन, प्रॉपर न्यूट्रिशन एडुकेशन वाज गिवन. न्यूट्रिशन तो प्रॉपर दे ही रहे थे, साथ साथ में न्यूट्रिशन एडुकेशन भी दे रहे थे. जब लोगों को पता होगा न्यूट्रिशन के बारे में तभी वो उस चीज को ज्यादा लेंगे ना, कि इसका डेफिशिएंसी है, सो ओके वी नीड टू टेक दिस मच न्यूट्रिशन, otherwise the vision will be getting impaired. So proper nutrition was given, nutritional education was given to the public and to the community as well, and also the public's and community's participation were asked as well. उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, उनको सबको एक साथ में आकर के ये जो हमारा प्रॉब्लम है कम्युनिटी में जो एग्जिस्ट कर रहा है ब्लाइंडनेस का, टू ओवरकम इट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाज आल्सो आस्क्ड. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज योर डाइटरी मॉडिफिकेशन. ठीक है, डाइटरी मॉडिफिकेशन में या इम्प्रूवमेंट इन द डाइटरी हैबिट में क्या था कि इसमें वो क्या कर रहे थे, दीज पीपल वर इंश्योरिंग कि लोगों को प्रॉपर विटामिन ए जितना रिक्वायर्ड है उतना वो विटामिन ए अपनी डाइट में ले रहे हैं. साथ साथ में दीज वर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द अदर फैक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कॉज ब्लाइंडनेस. ओके, पीईएम हो गया तो उसमें प्रोटीन दे रहे हैं, कोई रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए वट एवर इज रिक्वायर्ड दे आर डूइंग, डायरिया मैनेजमेंट दे आर डूइंग, देन दे आर डूइंग मीजल्स मैनेजमेंट एज वेल, सो दैट these particular reasons, diarrhea should not cause blindness, measles should not cause blindness. ठीक है, so जो भी हमारे अंडरलाइन कॉज है उनके ऊपर वो काम कर रहे थे. Now the second strategy, ये पहली स्ट्रैटेजी थी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स की. सेकेंड स्ट्रैटेजी हमारी क्या थी, विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस. विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस वो कर रहे हैं. इसमें ये क्या कर रहे थे, there was the administration of vitamin A being done. Okay, vitamin A administration was being done by the people, by the authorities. उन्होंने ये डिसाइड किया, by the health care team actually. ये कर रहे थे कि ये एडमिनिस्टर कर रहे थे विटामिन ए ओरली. विटामिन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए was administered orally. ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सेकेंड स्ट्रैटेजी में ये क्या कर रहे थे, सेकेंड स्ट्रैटेजी में ये डिसाइड हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे सिंगल डोज ऑफ विटामिन ए का. ठीक है, सिंगल डोज हम विटामिन ए का एडमिनिस्टर करेंगे जिनको भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है. सिंगल डोज कितना रहेगा, वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट. ठीक है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि विटामिन ए का 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए will be administered to the person who is deficient of vitamin A. और ये विटामिन ए orally administration करेंगे हर 6 महीने में. हर 6 महीने में सिंगल डोज एडमिनिस्टर करेंगे विटामिन ए का. ठीक है, जैसे एक अभी किया 1 डोज, फिर अब 6 महीने तक नहीं करेंगे, फिर दूसरे 6 महीने में दूसरा किया. ठीक है, सो इन्होंने ये बोला कि हर 6 महीने पे सिंगल डोज एडमिनिस्टर करी जाएगी विटामिन ए की ओरली जो की दी जाएगी. ठीक है, एंड मेनली इट वाज डन, मेनली क्या, इट वाज बेसिकली प्लान्ड फॉर
प्री स्कूल चिल्ड्रन, कि प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए हम ये चीज करेंगे कि उनको हर 6 महीने पे सिंगल डोज देंगे विटामिन ए की, जिसका हमारा कितनी क्वांटिटी रहेगी, क्वांटिटी विल बी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना था 1 साल से लेकर के 6 साल तक, 1 से 6 साल तक के बीच में इसको करना था। फर्स्ट डोज इसकी कब देनी थी, जिसमें कि फर्स्ट डोज इस जो ये अभी इन्होंने प्लान किया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्या प्लान किया, इंग्लिश हिंदी सब में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो कई लोगों की प्रॉब्लम थी कि मैम इंग्लिश में नहीं सब कुछ समझ आ रहा है, प्लीज थोड़ा हिंदी में भी बताइए, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस राइट नाउ इन हिंदी, ठीक है। इन्होंने ये प्लान किया, सेकंड स्ट्रैटेजी में ये चीज प्लान करी गई कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए विल बी डन, विटामिन ए का सिंगल डोज हम एडमिनिस्टर करेंगे हर 6 महीने पे प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए, 1 से 6 साल तक के बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, हर 6 महीने पे इनको विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए को हर 6 महीने पे हम एडमिनिस्टर करेंगे 1 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें से पहली डोज एडमिनिस्टर करी जाएगी जब वो बच्चा 9 महीने का रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जिसमें से पहला डोज हमारा एडमिनिस्टर करा जाएगा 9 मंथ्स पे। पहले डोज में हमें कितना एडमिनिस्टर करना है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फर्स्ट डोज में इट विल बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, जो कि 9 मंथ्स पे हम देंगे, ठीक है। उसके बाद हर 6 महीने पे फिर हम आगे का, इसके 9 मंथ्स के बाद फिर हम 6 महीने कैलकुलेट करके हर 6 महीने पे मेडिसिन को देंगे, ठीक है। सो बेटा वो 1 to 6 ईयर्स वाली लाइन काट देना, वो 1 to 6 ईयर्स वाली आप मत रखो, आप बस ये याद रखना कि इसमें इन्होंने ये चीज बोली थी कि हम प्री स्कूल चिल्ड्रन को हर 6 महीने पे एक बार 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें से पहला जो हमारा डोज है वो लगेगा तब जब बच्चा 9 महीने का होगा, तब बच्चे को वो फर्स्ट डोज हम देंगे। और फर्स्ट डोज में कितना हमें डोज देना है, इट विल बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। फर्स्ट डोज इतने की रहेगी, बाकी फिर हमारी 2 करके रहेगा। एंड फॉर दिस ऑल्सो यू नीड टू टेक वन थिंग इन अकाउंट, दैट इज के 9 मंथ्स पे पहले हमने दी, उसके बाद फिर उसके हिसाब से 6 मंथ्स को कैलकुलेट करके यू हैव टू गिव till the child is in preschool stage, ओके। और एक बात और, ये 6 महीने पे हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो विटामिन ए है दैट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, विटामिन ए बॉडी में स्टोर हो जाता है और फिर धीरे धीरे लिबरेट होता है। जब धीरे धीरे बॉडी उसको फिर छोड़ती है, रिलीज करती रहती है, तो 6 महीने तक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डूइंग गुड। 6 महीने तक एक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इतना कर रहे हैं, क्योंकि द बॉडी इज एब्जॉर्बिंग विटामिन ए। विटामिन ए एक बार अगर बॉडी में हमारे गया तो वो बॉडी में स्टोर रहता है और वो धीरे धीरे लिबरेट होता रहता है, धीरे धीरे निकलता है वो यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो 6 महीने तक एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन से काम चल जाता है, देन 6 मंथ्स के बाद वी हैव टू एडमिनिस्टर इट अगेन, ओके। सो लाइक दैट इट इज हियर। देन दिस सॉर्ट ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय NIN हैदराबाद। NIN हैदराबाद ने हमारी एक प्रॉपर ये सिंपल टेक्नोलॉजी को हमारे इन्वेंट किया। सम टेक्नोलॉजीज वर इन्वेंटेड बाय NIN हैदराबाद एंड देन और ये इन्होंने टेक्नोलॉजीज को क्यों इन्वेंट किया था, अगेन बिकॉज दे वांटेड टू गेट चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट ज़ेरोप्थेल्मिया। किसी बच्चे को ज़ेरोप्थेल्मिया ना हो, उससे उनको इम्यूनाइज करने के लिए टू इम्यूनाइज देम अगेंस्ट ज़ेरोप्थेल्मिया कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज फिर देन NIN हैदराबाद ने फिर बिल्ड करी, एंड देन द प्रोग्राम वाज रन ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन ऑन दोज टेक्नोलॉजीज। जो टेक्नोलॉजीज हमारी डेवलप हुई फिर उनके बेसिस पे फर्दर जो प्रोग्राम है उसमें कुछ चेंजेस आते रहे, ठीक है। देन देयर वर अ फ्यू रिवाइज्ड स्ट्रैटेजीज, मतलब जब प्रोग्राम हमारा आ गया, सर्वे कंडक्ट कर लिया, फिर उसका विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ, डाइट वाज आल्सो इम्प्रूव्ड, देन ऑन द बेसिस ऑफ द चैलेंजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स द स्ट्रैटेजीज गॉट रिवाइज्ड। स्ट्रैटेजीज को फिर रिवाइज किया गया। कब इसका रिवीजन किया गया,
द स्ट्रैटेजीज गॉट रिवाइव, ये जो हमारा स्ट्रैटेजी में चेंज किया गया, इट वॉज डन बेसिकली फॉर द ईयर 1998 टू 1999 एंड 1999 टू 2000, इनके बीच में स्ट्रैटेजीज को रिवाइज किया गया. ठीक है, 1998 से 1999, देन 1999 से 2000. सो ये इन टाइम्स के बीच में जो सर्वे कंडक्ट कराया गया, यानी 1998 से लेकर के 99 में, फिर 99 से 2000 में, इन 2 सालों में जो भी सर्वे कंडक्ट करवाए गए, on the basis of those surveys, on the basis of the result of those surveys, there were a few modifications, there were a few changes which was made to the current existing program. अब वो क्या क्या changes थे वो मैं आपको बता रही हूँ. पहला चेंज हमारा ये था कि ये डिसाइड किया अथॉरिटीज ने that the program has to be more comprehensive. ठीक है, comprehensive होने का क्या मतलब है कि प्रोग्राम को थोड़ा सा और होलसम होने की जरूरत है, और कुछ चीजों को इंक्लूड करने की जरूरत है. ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर फोकस नहीं, थोड़ा सा और कुछ चीजों को इंक्लूड करने की जरूरत है. सो पहला ये कि प्रोग्राम को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने की जरूरत है. और कैसे इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं? बाय स्ट्रेंथनिंग सर्विसेज फॉर द अदर प्रॉब्लम्स. जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करके, उनके लिए भी सर्विसेज को बूस्ट अप करके हम ये चीज कर सकते हैं. अदर प्रॉब्लम्स लाइक कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो गया हमारा, रिफ्रैक्टिव आई डिसऑर्डर्स हो गए. ठीक है, देयर वर अ फ्यू अदर प्रॉब्लम्स. अगर उन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी कुछ प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए स्ट्रैटेजीज का, उनके लिए भी कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो जब हम उनको ट्रीट करेंगे तो प्रोग्राम हमारा और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, कई चीजों को साथ में लेकर के चलेगा, विच विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस. ठीक है, पहला चेंज हमारा ये था. सेकेंड हमारा चेंज क्या है? टू शिफ्ट फ्रॉम आई कैंप अप्रोच टू सर्जिकल अप्रोच. सेकेंड हमारा चेंज ये था कि सिर्फ आई कैंप्स को कंडक्ट कराने की बजाय अब हमें एक ऑपरेशंस के लिए भी, सर्जरी के लिए भी फैसिलिटीज को रेडी करना चाहिए. ओके, मतलब इस सेकंड चेंज में ये बोल रहे हैं कि पहले जैसे सिर्फ आई कैंप्स कंडक्ट कराए जा रहे थे, आई सर्वेज कंडक्ट कराए जा रहे थे, कैंप्स में जो लोगों को बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जा रहा था, उनको स्क्रीन करा जा रहा था, उनके लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. तो अब ये सेकंड चेंज और सेकंड मॉडिफिकेशन ये आया कि देयर ऑल्सो हैज टू बी सम फैसिलिटीज फॉर सर्जिकल अप्रोचेस एज वेल. सम सर्जिकल अप्रोचेस are to be made or they have to be there actually. So this was the second strategy. The third strategy is the expansion of World Bank project activities. World Bank project activities को भी अब हमें बढ़ाना पड़ेगा. जो World Bank projects हमारे हैं, World Bank हमारा क्या है? This is an agency. तो हमारा जो World Bank है, इनके प्रोजेक्ट्स को अब इनके भी तरफ हमें थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. एंड देयर हैज टू बी सम फैसिलिटीज, देयर हैज टू बी सम कंस्ट्रक्शन टू बी देयर फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई हॉस्पिटल्स एंड द आई ऑपरेशन थिएटर्स. ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को अब और ज्यादा हमें एक्सपैंड करना था. और अभी तक आई कैंप्स तो हो ही रहे थे, ये सब चीजें, ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ में अब हमें चाहिए थे द ऑपरेशन थिएटर्स एज वेल फॉर कंडक्टिंग आई सर्जरीज. तो इन ऑपरेशन थिएटर्स को कंडक्ट, इनका कंस्ट्रक्शन जरूरी था, उनको बनवाना था. ठीक है, ऐसी कहीं पे तो सर्जरी नहीं हो सकती, और उस टाइम पे आई ऑपरेशन थिएटर्स, IOTs नहीं थे. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ IOT ऑल्सो was one of the strategies which were revised. Then, and also along with the eye operation theaters, also it was focusing on supply of the ophthalmic equipments. Ophthalmic equipments का क्या मतलब है? कि जो भी आई के चेकअप के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए आई सर्जरीज के लिए, ठीक है, वो सारे इक्विपमेंट्स की सप्लाई was also one of the concern. Then the other concern was कि जो आई सर्जन्स हैं, आई सर्जन्स की प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड, और it should be getting start so that the people, the surgeons will be knowing
more about the eye disorders, and they will be contributing to their best for conducting the surgeries for the patients who have some eye disorders or who need some eye operations like cataract is there. ठीक है, कैटरैक्ट हमारा हो गया जिसको बोलते हैं हिंदी में मोतियाबिंद. ठीक है, सो उसके लिए भी ऑपरेशंस तब नहीं हो पाते थे, तो उस सब को कंडक्ट करवाने के लिए देन दिस स्ट्रैटेजी वाज बिल्ड अप. देन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू स्ट्रेंथन द पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने फिर उसके बाद अभी जो ये गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, अभी तो गवर्नमेंट का बेसिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट है. फिर इन्होंने स्ट्रेंथन किया कि जो हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो जैसे एनजीओज हो गए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इनका भी पार्टिसिपेशन उसमें इन्वॉल्व किया, ताकि ये लोग भी मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और मतलब जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है वहां तक ये लोग जाकर के लोगों को लेकर के आए, लोगों को इकट्ठा करें, जिनको कुछ प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके. सो फॉर दैट एनजीओज वर मेड टू पार्टिसिपेट as well. Then next is to enhance the coverage of eye care services in tribal and other undeserved areas. जो कुछ हमारे ट्राइबल एरियाज हैं या फिर जो हमारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर पहुंच नहीं सकती, जहाँ के लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कस्बे हो गए जो छोटे छोटे, तो उन तक भी आई सर्विसेज को पहुंचाया जा सके. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज. ओके, so this was the revision of the strategies, और ये रिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वेज जो कंडक्ट कराए गए थे इन द ईयर 1998 to 1999, देन ईयर 1999 to 2000. उसके बीच में जो सर्वे किया गया उसके रिजल्ट्स के बेसिस में ये रिविजन्स लेकर के आया गया. नाउ देयर वाज इन इस स्ट्रैटेजीज के साथ और एक प्रोग्राम के साथ These people also had a vision. इनका एक विजन था, इनका ये मानना था कि ईयर 2000 तक इनको क्या अचीव करना है. दैट इज नोन एज विजन. जैसे अगर इफ आई एम अ स्टूडेंट, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा विजन क्या है कि मैं एग्जाम्स में टॉप करूंगी. दैट इज माई विजन. ठीक है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है कि मैं एग्जाम्स में टॉप करूंगी. वैसे ही अगर गवर्नमेंट जब कोई प्रोग्राम निकालती है तो उनका भी एक विजन होता है. इस प्रोग्राम के वजह से गवर्नमेंट का विजन था कि बाय द ईयर 2020 द विजन वाज द राइट टू साइट. द राइट टू साइट, ठीक है, राइट टू साइट का मतलब क्या है? राइट मतलब हक, साइट मतलब देखना, तो देखने का हक बाय द ईयर 2020. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विजन के अकॉर्डिंग इट वाज ये एक हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव था. पूरे वर्ल्ड से ये एक इनिशिएटिव को लिया गया कि जो ये ब्लाइंडनेस जो ब्लाइंडनेस डेवलप हो रहा है इन द कम्युनिटी और द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस, इट हैज टू बी प्रॉपरली ट्रीटेड. और क्योंकि ये ग्लोबल इनिशिएटिव था, सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज टुक प्रॉपर इनिशिएटिव्स. इंडिया ने भी प्रॉपर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन दिस इनिशिएटिव एंड अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द कंट्री वॉज डेवलप्ड. जो हमारा ये 2020 तक जो हमारा ये जो विजन था इस प्रोग्राम का कि 2020 तक एक विजन सेट किया गया ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में एक विजन को सेट किया, द राइट टू साइट. अब इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम करने के लिए बाकी सारी कंट्रीज के साथ साथ इंडिया ऑल्सो पेड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन. और इस कॉन्ट्रीब्यूशन और इस इनिशिएटिव में काम करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया कि क्या हम किस तरीके से काम करेंगे ताकि इस विजन को हम अचीव कर सकें. तो पहला क्या था, इन्होंने कुछ चीजों पे ध्यान दिया. पहला ये कि देयर वर अ फ्यू टारगेट डिजीजेस, कि हमें ये चीज इन पर्टिकुलर डिजीजेस पे ज्यादा फोकस करना है या फिर इन डिजीजेस पे हमें फोकस करना है. देयर वर अ फ्यू टारगेट डिजीजेस, दैट इज कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर्स वर देयर इन द चाइल्डहुड. ओके, कैटरैक्ट पे हमें ध्यान देना है. रिफ्रैक्टिव एरर्स चाइल्डहुड में जो मेनली हो जाते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स विच कैन कॉज चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, तो उन रिफ्रैक्टिव एरर्स पे फोकस करना है. देन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पे फोकस करना है. देन ग्लूकोमा इज वन ऑफ दोज. देन डायबिटिक रेटिनोपैथी. ठीक है, इन सारी चीजों पे फोकस करने के लिए ये सारी डिजीजेस हमारी थी टारगेट डिजीजेस. क्या क्या था? डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा इज देयर,
रिफ्रैक्टिव एरर्स इज देयर, रिफ्रैक्टिव एरर हो गया. कोई चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस है तो दैट इज वन ऑफ दोज. कैटरैक्ट इज देयर, देन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस. ये सारी डिजीजेस को हमारा टारगेट डिजीज बनाया गया कि पहले हमें इनके ऊपर काम करके इनको सही करना है, एंड वी ऑल्सो हैव टू प्रिवेंट दीज फ्रॉम अकरिंग. ओके, सो this was the first feature. Second feature is human resource development. Second focus इन्होंने किया कि human resource development करना है. Human resource development करना है, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करना है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हर एक लेवल पे ट्रेन्ड पर्सन को होना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो इंसान काम करता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. सो यानी कि जो ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो आई सर्जरी के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं. ठीक है, सो द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आ गई, जैसे हमारे ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट्स आ गए, और आई डिसऑर्डर्स की स्क्रीनिंग के लिए डिवाइसेस, मशीन्स जो चाहिए वो आ गए. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, ऑपरेशन थिएटर्स को बिल्ड करना, हॉस्पिटल्स को हर एक लेवल पे बिल्ड करना, ये सारी चीजें. ठीक है, ये मैं आपको ब्रेक करके बता रही हूँ क्या क्या है. पहला ह्यूमन रिसोर्सेज में डॉक्टर्स और ट्रेन्ड पीपल आ गए, ट्रेन्ड पर्सनल्स आ गए. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा आ गया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां पे जिस पर्टिकुलर जगह पे सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है, दैट इज योर हॉस्पिटल्स आर देयर, आई ऑपरेशन थिएटर्स शुड बी देयर. देन टेक्नोलॉजीज में क्या आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए, आपके जो मशीन्स यूज किए जाते हैं वो आ गए, प्रॉपरली ऑल दोज थिंग्स. ओके, सो इसका भी डेवलपमेंट, इसका भी प्रॉपर इन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए बोला एट वेरियस लेवल्स. एंड ऑल्सो द 4 टायर सिस्टम वॉज प्रपोज्ड. 4 टायर सिस्टम को प्रपोज किया गया. क्या था ये 4 टायर सिस्टम, क्या क्या चीजें इसमें आ जाती थी. सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 20. पहला 4 टायर सिस्टम में 4 टायर है ना, 4 टायर का पहला टायर हमारा क्या था, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 20. दिस वॉज द फर्स्ट टायर. सेकेंड इज ट्रेनिंग सेंटर्स 200. सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कितने होने चाहिए, 20. हर एक का नंबर भी दिया हुआ है साथ साथ में कि 20 जो मैंने बोला वो नंबर था. ठीक है, सबसे पहला हमारा टायर क्या था, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. ये आई डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए 4 टायर सिस्टम इन्होंने बनाए. 4 टायर सिस्टम का पहला टायर था सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होने चाहिए 20 इन नंबर, जहां पे आई सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी. देन देयर शुड बी ट्रेनिंग सेंटर्स. ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, 200. ठीक है, 200 ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए. देन देयर शुड बी सर्विस सेंटर्स. सर्विस सेंटर्स होने चाहिए 2000. ठीक है, देन देयर शुड बी विजन सेंटर्स.